Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. Like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. Hello everyone, this is Shubhra Roy. I have secured rank 147 in this year UPSC CSE 2025. My UPSC journey was about learning from my mistakes and improving upon them and not giving up. I have secured this rank in my 5th attempt. To give a brief about my UPSC journey so far, in my first attempt in 2021, I was not able to clear the prelims. In the next 2 attempts in 2022 and 2023, I qualified prelims but I failed to clear the main stage. And in my 4th attempt, I finally got into IRTS. And in my 5th attempt, I have now secured this rank. So since I have given 4 mains overall, in this video, I will mostly be answering what to do for mains and specially catering to those who are going to be writing their first mains this time. Now that there are about 60 days. So in this video, it will be first the common mistakes that people tend to make. Second would be how to improve upon them and what are the things that you should keep in mind and not commit those mistakes. And third would be about optional. I had economics optional, so I'll be talking about what changes I made this time that led to a significant jump in my marks. So firstly, huge congratulations to everyone who is going to be writing the mains. This time the prelims was really tough, so you've got a golden opportunity now. So we'll be discussing the common mistakes which I also committed in my first mains in 2022. So the first and most common mistake is running behind syllabus completion. So let me tell you that it is a myth, okay? The syllabus for mains is so wide कि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि वो खत्म हुआ है. Even in my last mains, which was my 4th mains actually, मुझे फिर भी लग रहा था कि कुछ एरियाज के नोट्स मिसिंग है, कुछ मैं ऐड ऑन बेटर कर सकती थी, कुछ रिवीजन में गैप रह गए, तो वो सेंस ऑफ कंप्लीशन कभी भी नहीं आएगा. तो अभी ये टाइम नहीं है कि आप बल्कि कोई सोर्स उठाएं या कोई नोट्स उठाएं, तो वो गलती तो ना करें. सेकेंड वुड बी मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज नॉट हैविंग अ फिक्स्ड रूटीन. क्या होता है कि मेंस पे इतना सिलेबस है, यू हैव टू बैलेंस एसे, जीएस है, ऑप्शनल है, तो कई बार क्या होता है कि हम कोई प्रॉपर रूटीन ही नहीं बना पाते हैं ऐसे करके. तो अगर आपके पास एक मतलब प्लान नहीं होगा, एक सही ढांचा नहीं होगा, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मतलब जब क्लोज आता है मेंस तो और एंजाइटी बढ़ती ही जाती है. तो यू नीड टू हैव दैट सॉलिड प्लान राइट नाउ, तो वो गलती ना करें. थर्ड वुड बी लेस प्रैक्टिस. क्या होता है कि जब हमारे पास सिलेबस कंप्लीशन नहीं होता है या मतलब कुछ चीजें रह जाती है तो हम ज्यादा उसके पीछे भागते हैं. मतलब हमें लगता है कि वहां से पढ़ ले, ये पढ़ ले, बट मेंस इज नॉट अबाउट और पढ़ ले. मेंस में है कि आप कितना और प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि इतना कम टाइम होता है एंड देयर इज सो मच टू राइट कि अगर आपने वो अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, आपके दिमाग में नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं है, तो वो वहां पे नहीं आ पाएगा और मतलब पेपर कंप्लीशन का बहुत बड़ा इशू हो जाता है. एंड अभी जो लेवल चल रहा है मेंस में, यू कांट अफोर्ड टू लीव क्वेश्चंस देयर, तो ये भी नहीं होना चाहिए. Fourth common mistake that I have seen and I also did was subscribing to a lot of test series and courses at this point. तो उससे क्या होता है कि हम मतलब 2 टेस्ट सीरीज ले ली जीएस की, तो किसी का शेड्यूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, ऑप्शनल की भी लगा ली, ऐसे की भी अलग से ले ली, कुछ और कोर्सेज भी ऐड कर दिए, कुछ वैल्यू एडिशन, करंट अफेयर्स का हो गया, कुछ मॉड्यूल कोर्सेज. तो इससे क्या होता है कि आपका खुद का कुछ प्लान नहीं बन पाता है, वो बहुत ही केओटिक हो जाएगा. तो ये तो गलती ना करें एंड आई विल रेकमेंड विल लेटर डिस्कस कि कैसे करना चाहिए, कि इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं. सो दैट इज देयर. एंड द 5th पॉइंट इज रिलेटेड टू ऑप्शनल बट यू कैन जनरलाइज इट एज वेल. कुछ मेमोराइजेशन गैप्स रह जाते हैं ऐसे करके. तो जैसे कि माई ऑप्शनल वॉज इकोनॉमिक्स विच इज अ बिट टेक्निकल इन नेचर. तो व्हाट आई हैड डन इनिशियली कि जैसे पेपर 1 सबका थोड़ा ज्यादा मतलब टेक्निकल होता है एंड पेपर 2 इज मोर जनरल. तो पेपर 1 में जैसे इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वी हैव मॉडल्स, इक्वेशंस हैं, ग्राफ्स हैं, विच इज डिफिकल्ट. ऐसे यू नीड टू मेमोराइज सर्टेन स्टफ, यू नीड टू हैव दैट प्रैक्टिस. सो वो मेरे मेमोराइजेशन गैप्स थे. तो क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वहां पे थिंकिंग का टाइम नहीं होता है,
तो दैट रियली कॉस्टेड मी, मतलब मेरे क्वेश्चंस छूट गए थे फर्स्ट मेंस में. तो दिस शुड नॉट हैपन. सो दीज वर द 5 कॉमन मिस्टेक्स दैट आई हैव सीन पीपल कमिट in their first mains. So now that we have discussed that what are the common mistakes that people tend to commit during mains, and especially those who are writing it for the first time, we'll be discussing how to go about mains now that there are about 60 days left. So firstly, as I mentioned कि syllabus completion का challenge होता है and वो sense of completion आना मुश्किल है. So first and foremost you need to remember that if you have cleared prelims, तो आपका एक बेस तो है, you're not स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो उतना अंडर कॉन्फिडेंस में जाने की जरूरत नहीं है. सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ एरियाज हमने कवर नहीं किए होते हैं जो मतलब प्रीलिम स्टेज पे नहीं आता है. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं उन एरियाज के लिए बुकलेट्स उठा लेती थी. देयर आर प्रहार बुकलेट्स एंड इन माय ओपिनियन दे आर क्वाइट गुड. तो जैसे वो एरियाज हो गए, जैसे गवर्नेंस हमने नहीं पढ़ा होता है, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, तो आप उसके लिए बुकलेट्स का यूज कर सकते हैं. सेकेंड वे टू डू इट इज कि आप सिलेबस के कीवर्ड्स उठाइए एंड जस्ट टाइप इट ऐसे यूपीएससी डाल के, तो उसमें 3-4 आर्टिकल्स पढ़ लीजिए एंड व्हाट यू कैन डू इज कि रनिंग नोट्स बना लीजिए उससे. तो वो उससे मतलब उस टॉपिक पे कुछ ना कुछ आपके पास होगा विच इज इनफ इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, ऐसे कि यू हैव कवर्ड इट. सो दैट इज अ वे टू गो अबाउट सिलेबस कंप्लीशन एट दिस पॉइंट. सेकेंड वुड बी कि रूटीन एक हमारे पास सेट नहीं होता है, वी डोंट हैव अ प्लान. तो रूटीन के लिए क्या कर सकते हैं? सो मंथ वाइज और डे वाइज बता देती हूँ व्हाट आई वुड रेकमेंड एट दिस पॉइंट. कि जैसे नाउ दैट देयर आर अबाउट 60 डेज लेफ्ट, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 30 डेज का एक स्लॉट करिए, उसमें ट्राई टू फिनिश इट वंस. फिर सेकेंड 20 डेज का और फिर 10 डेज का, जिसमें आप 5-5 भी ब्रेक कर सकते हैं. बिकॉज जो लास्ट होता है उसमें यू आर रिवाइजिंग द शॉर्ट नोट्स, ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़ा रिविजन मैराथन टाइप्स आपको करना होगा, तो उसमें आप वो वैसे कर सकते हैं. तो दैट इज अ वे टू ब्रेक द मंथ, द रिमेनिंग डेज दैट आर देयर. डेली के लिए क्या कर सकते हैं? सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि माय डे वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्लॉट्स. तो उसमें फर्स्ट स्लॉट ऑप्शनल का होता था बिकॉज ऑप्शनल इज मोर हैवी. तो उसमें क्या होता है कि इफ यू पुट इट, इफ इट यूज्ड टू हैपन टू मी कि इफ यू पुट इट फॉर द एंड ऑफ द डे, वो नहीं आता था, मतलब वो एंड में फिर वो हो ही नहीं पाएगा. तो फर्स्ट स्लॉट आप सबसे मुश्किल रखिए ऑप्शनल का. सेकेंड कुड बी जीएस एंड थर्ड में मेरा होता था कि आई यूज टू ब्रेनस्टॉर्म, कभी ऐसे कुछ वैल्यू एडिशन देखना हुआ, तो इट वाज 4 आवर्स एंड 3 आवर्स ऐसे. एंड इफ यू आर थिंकिंग कि इतना आवर्स कैसे पुट इन करे, सो बिकॉज मेंस इज थोड़ा कॉम्पैक्ट, आपके पास टाइम कम होता है, तो वो नेचुरली आ जाता है. सो यू डोंट नीड टू स्ट्रेस अबाउट इट. वो आवर्स फिर एंड में आप गिनना भी बंद कर दोगे, मतलब जब वो प्रेशर आने लगता है. सो उसका टेंशन नहीं है. सो दैट इज देयर. तो दिस इज हाउ यू कैन ब्रेक इट. थर्ड वुड बी कि PYQ शुड बी डन रियली वेल. एंड अगर आपके पास टाइम कम है, आप 6 ईयर्स की करिए, 5-6 ईयर्स की, आप 2020 से उठा लीजिए. उसमें क्या होता है कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से एरियाज रिपीटेडली आ रहे हैं, और उस पे यू कैन हैव योर नोट्स इन दैट फॉर्मेट ओनली. कि मतलब इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, पॉइंटर्स क्या डाल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल फेडरलिज्म है GS2 में, विच इज अ वेरी ऑफन रिपीटेड टॉपिक. सो व्हाट आई हैड वाज कि उस पे मतलब मेरा इंट्रोडक्शन रेडी था. कुछ अगर मुझे आर्टिकल कोट करना है, फेडरलिज्म कहाँ है, ऐसे कुछ कीवर्ड्स हो गए, किसी ने कोई पॉलिटिकल थिंकर ने उस पर कोई कोट दिया हुआ है, कुछ केस स्टडीज हैं जो उसमें कोट हो सकती हैं. कंक्लूजन में कुछ ऐसे आ सकता है इनोवेटिव, कुछ कोट ही, या मतलब कुछ ऐसे लिंकेज ऐसे, तो यू कैन डू दैट. सो वैसे PYQs रियली हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग दोज एरियाज. तो PYQs अच्छे से करिए. Now that these 3 pointers cover the mostly syllabus part, practice पे आते हैं. तो fourth I would recommend doing is toppers copy. For me personally, nothing helped me more in identifying my gaps than topper copies, and they are a very good way to do answer writing. तो इसमें मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने कोई टॉपर की कॉपी ली, उनमें मैंने मतलब पहले क्वेश्चन देखा, फर्स्ट आई यूज टू राइट इट ऑन माई ओन, और उसके बाद मैं टॉपर की कॉपी में देखती थी कि उन्होंने कैसे लिखा है. तो जैसे कुछ गैप्स मैंने अपने लिए आइडेंटिफाई किए थे. जैसे वन ऑफ द की इश्यूज दैट आई हैड वाज आई वाज राइटिंग लेस पॉइंट्स कंपेयर्ड टू टॉपर्स. तो मेरा होता था कि उसकी वजह से क्या होता था, सेकंड रिलेटेड इशू वाज दैट कि वो स्पेस खाली दिख जाती थी कॉपी में ऐसे करके. तो यू नीड टू गिव दैट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट टू द एग्जामिनर ऑल्सो कि अच्छा बच्चे ने अच्छे से लिखा है, अच्छे से कवर किया है क्वेश्चन. तो इससे मैंने एक रूल बनाया हुआ था अपने दिमाग में कि अगर 10 मार्कर्स है तो 10 पॉइंट्स, 15 मार्कर्स है तो 15 पॉइंट्स में मैं ब्रेक करूंगी. तो
वो सब उतनी नॉलेज, उतना एनालिसिस मुझे टॉपर कॉपी से आया था, तो आई वुड 100% रेकमेंड कि ये करिए। और ये इनर्शिया ब्रेक करने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही FLT लिखना मतलब बहुत बर्डन हो जाता है, मेंटल बर्डन हो जाता है। तो आप पहले टॉपर कॉपी से स्टार्ट करिए। इसी से एक रिलेटेड पॉइंट होगा कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए आप। तो दैट वुड बी माई 5th सजेशन। और उसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे मतलब FLT रोज लिखना इज नॉट पॉसिबल, इनफैक्ट वीकली आप कर सकते हो उसका शेड्यूल। बट वॉट आई यूज टू डू वॉज कि मैं डेली कोशिश करती थी कि मैं 3 10 मार्कर्स और 2 15 मार्कर्स करूं विद इन द गिवन टाइम। तो क्या होता है कि 10 मार्कर्स के लिए वी गेट 7 मिनट्स अराउंड, एंड 15 मार्कर्स के लिए 11 मिनट्स होता है। तो मेरा होता था कि उतने में आई यूज टू प्रैक्टिस, एंड फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेती थी, बिकॉज आई यूज टू डू इट इन द लास्ट स्लॉट ऑफ द डे, तो थोड़ा वो फटीग भी रहता था। तो व्हाट आई यूज टू डू कि अगर मैं प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ उसको, तो मैं कम से कम पॉइंटर्स लिख लेती थी कि अच्छा आई वुड राइट दिस इन द इंट्रोडक्शन, ये पॉइंटर्स में मेरे कीवर्ड्स होंगे, ऐसे मैं ब्रेक करूंगी इसको 2 पार्ट्स में। तो क्या होता है कि इफ यू हैव टू राइट 10 पॉइंट्स इन 10 मार्कर्स, सो इट्स ईजियर इफ यू डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 2। तो वैसे करके आप कर सकते हैं। तो दैट आई यूज टू डू फॉर माई डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो दैट वॉज देयर। नाउ वन ऑफ द 6th सजेशन फ्रॉम माई साइड वुड बी कि थोड़ा वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चरिंग एज वेल, क्योंकि द पर्पस फॉर दिस इज कि यू हैव टू मेक द जॉब ऑफ एग्जामिनर ईजियर। तो उसमें दिस टाइम व्हाट आई हैड डन वाज कि मैंने बहुत फ्लो चार्ट्स का यूज किया था पॉइंटर्स के लिए। तो उससे क्या होता था कि इट वाज इजियर आल्सो फॉर मी टू राइट मोर पॉइंट्स इफ आई यूज टू राइट इट, क्योंकि पहले मैं थोड़ा बल्कि लिखती थी, इट यूज टू बी थोड़ा लंबा पॉइंट्स वैसे, सो उसमें आई वाज नॉट एबल टू राइट एज मच। सो दिस टाइम आई यूज दैट। सेकेंड कि आप कहाँ पे वो फिगर्स का यूज कर सकते हैं, तो उसमें मैंने आर्ट एंड कल्चर में काफी ड्रॉ किए थे। इस बार हड़प्पन सिविलाइजेशन पे भी क्वेश्चन था, तो इट वाज इजियर टू पुट दोज इमेजेस देयर, सो दैट आई डिड। एथिक्स में थोड़ा मैंने यूज करने की कोशिश करी थी। सो उसमें आप वैल्यूज कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं केस स्टडीज वगैरह में, बिकॉज यू गेट मोर स्पेस ऑल्सो टू फिल। सो दैट इज देयर। हर जगह नहीं आएगा, जैसे इको में क्या होता है कि आप थोड़े शॉर्ट ग्राफ्स बना सकते हैं, सो आई ट्राई टू डू इट दिस टाइम। सो दैट इज देयर, एंड सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन कीप इन माइंड। 7th वुड बी वैल्यू एडिशन, एंड उसी के रिलेटेड शॉर्ट नोट्स हाउ यू कैन मेक। सो पहले तो आप शॉर्ट नोट्स का पर्पस समझिए। शॉर्ट नोट्स हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि वो जो लास्ट का स्लॉट है, वो 10 डेज वगैरह, उसमें मल्टीपल रिविजन हो सके उसी चीज के। तो उसमें आप वो रनिंग नोट्स कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 10 डेज छोड़ के फिर उसके बाद आप बनाना शुरू कर दीजिए जो भी आप टॉपिक्स, जैसे आपने अर्बनाइजेशन पढ़ा, उसका आपने कुछ थोड़ा लंबा नोट्स 2 पेजर यू हैव क्रिएटेड ना, उसको एक ही पेज में, उससे भी शॉर्ट मतलब हाफ पेज में अर्बनाइजेशन पे आपने कोई उसमें वैल्यू एडिशन डाल दिया, उसका इंट्रोडक्शन में क्या हो सकता है, कोई डेटा, फैक्ट, SDG, जस्ट दैट, जस्ट डोंट राइट फुल पॉइंट्स शॉर्ट नोट्स में, दैट यू कैन डू। एंड अगर खुद से बनाने का टाइम नहीं है तो भी व्हाट आई यूज टू डू कि अगर मान लो मुझे टाइम नहीं मिला हर जगह खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने का, तो कंपाइलेशंस आती हैं, जैसे विजन IAS की है, उसमें डेटा और फिगर्स और ये सब होता है। आई थिंक मेंस 365 जब वो रिलीज करना स्टार्ट करते हैं, सो दे हैव इट सेपरेटली शॉर्ट नोट्स वैसे, सो यू कैन यूज दैट एज वेल। जितना आप अपना मेंटल बर्डन इन सब चीजों का कम कर लें एंड फोकस मोर ऑन प्रैक्टिसिंग, दैट इज द गोल हियर। तो you can pick that up. I remember Shunya IAS has also these compilation of case studies and कुछ अच्छे examples हो गए, you can pick that up. तो आपका वो short notes वाला वो full हो जाएगा, तो that you can do it from there, and तो that is there. Now the 8th point in my opinion would be that कि आप अपनी physical health को भी ignore ना करें. So what happens is because mains is very physically demanding. तो क्या होता है कि कई बार हम बिल्कुल ही वो एक चीज इग्नोर कर देते हैं, एंड इट हैपेंड इन माय फर्स्ट मेंस कि बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर आई वाज डीलिंग विद स्पॉन्डिलाइटिस, तो मुझे वहां जाके मतलब पेन किलर्स खा के आई वाज राइटिंग द मेंस। सो प्लीज, आई नो कि थोड़ा मेंस के टाइम इट इज वेरी हेक्टिक, बहुत क्योटिक होता है प्रिपेयर करना, इट इज, तो वी डोंट गेट द टाइम टू डिवोट टू फिजिकल एक्सरसाइज, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप दिन में आधे घंटे भी निकालिए एंड यू वर्क ऑन दैट, because so that you are physically fit also to write mains. So that is there. So one last thing that I would like to talk about is how to deal with bouncer questions. तो कई बार क्या होता है कि आप कितना भी कुछ कर लेंगे, वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको आइडिया नहीं होगा, या मतलब उस पर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, कहीं टेस्ट में नहीं देखा होगा, सो दैट इज देयर।
तो अब इनको कैसे डील कर सकते हो, उसके लिए क्रिएट अ फ्रेमवर्क पहले से. दैट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि अगर मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, सो आई यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड कि उसमें कीवर्ड क्या है और उस पर मैं कैसे जनरल पॉइंट्स जनरेट कर सकती हूँ, एटलीस्ट 4-5. जैसे इफ यू ब्रेक इट एनी वे यू आर जनरेटिंग पॉइंट्स फॉर मतलब 2 halves एंड उसमें 5 and 5 points. सो इफ यू पिक अप द कीवर्ड्स यू आर एबल टू राइट, और कुछ आप एडिशनल डायमेंशन उसमें ऐड कर सकते हैं सो दैट द स्पेस यू आर गिवन इज कवर्ड. ऐसे फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ITER and it was asking the specific contribution of India. Now I don't think anybody had really studied that. That was not in the material, at least I had not come across. So what I did was ki general points, what are the contributions that India does on international level. So what I did first was human resources ki technical expertise provide kari hongi program ko. So that was the first point. Second is some material component, because we have seen that space वगैरह में भी that is what we do. मटीरियल कॉम्पोनेंट्स कुछ दे दिए ऐसे. सो वैसे करके यू कैन जनरेट जेनेरिक पॉइंट्स. तो बाउंसर क्वेश्चंस भी कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि कैन वी लीव इट, एंड माय सजेशन इज नो. जस्ट राइट अराउंड द कीवर्ड, जनरेट सम एडिशनल डायमेंशन, some positives of India contributing to such programs in global level. तो what could be the benefits for India, आप वैसे करके additional dimension उसमें add कर दो. So that can be done. तो उससे आप space आपका नहीं छूटेगा, आपको कुछ average marking कम से कम मिल जाएगी. And because again, as I have mentioned, that now the competition at mains level is so intense, you can't afford to lose a question, lose 1 mark even, क्योंकि उससे भी काफी difference हो जाता है, because वो cumulative है mains में. Across papers आप कुछ 2 question छोड़ दो तो वो काफी हो जाता है gap create already. So I would not recommend that. So bouncer questions you can deal with it in that way. So lastly, I would like to wish everybody all the very best. If you have any further doubts, you can ask me on my Telegram channel. You can connect with me there. And I know that it is the most chaotic phase, but it is the most rewarding as well. Because mains ही वो stage है जिससे आपकी rank आएगी. Interview and prelims are very unpredictable in that sense. Mains is what you have in your hand. And I have seen that how much efforts you put into mains, it reflects on your mark sheet. So please, 60 days is enough time. Please do not think, do not be underconfident, do not run behind multiple sources. Keep the mistakes that I have mentioned in mind and the suggestions. And any further doubts you have, you can connect with me on Telegram. And I would like to take this opportunity to thank DKT for giving me this platform. Because I have experienced 4 mains, I wanted to share this with the aspirants for their benefits, because I have benefited from watching several videos related to such topics on DKT. So I'm very grateful for this opportunity. Thank you.